A very good morning to all of you and very warm welcome to your maths classes. We have completed Lorentz formula and one of the exercise 10.2 from the chapter circle was left. Some of the questions were left. So what we're going to do, we're first going to discuss the questions which you have to do in your copy. I'll tell you the questions and after that we'll discuss some of the questions from them. And if you do not understand any question other than that, you can ask the questions. So the first question, from exercise 10.2, question number 1 to 7, आपको सारे questions करने हैं. After that, you have to do question number 11, question number 15, then question number 20. After that, we have very short answer type questions, and from here you have to do question number 27, question number 33, 34, question number 38, 39. Question number 40, and after that question number 44, 45, 46 and 47. So only these many questions you have to do in your copy and rest of them you have to practice in your practice copy. If you do not understand them, then you can ask those questions. So now one by one we are going to discuss some of the doubts also. In questions में से आपने कुछ doubts भी पूछे हैं तो हम उनको भी discuss करेंगे और जो questions आपको अपनी copy में करने हैं वो सारे questions भी. So in the question it is given that we have to consider an isosceles triangle. So let ABC be the isosceles triangle with the sides AB equals to AC. And now we have to prove that BD equals to DC as it is given in the diagram. हमने जो सर्कल बनाया है उसको हमने डायमीटर जो है वो हमने ट्रायंगल का एक साइड लिया है, दैट इज द साइड AB and O is the center of the circle. In order to solve this question, we have to do a construction. We'll join the line AD. Now, angle ADB equals to 90 degree. ADB. This is 90 degree. Why? Because this is an angle in the semicircle. AB and this whole portion is a semicircle and angle in the semicircle is 90 degree. So, ये कितना हो गया? 90 degree. Also, angle ADB plus angle ADC, this and this, the sum is 180 degree because they are linear pair angles. तो अगर ये 90 degree है तो ये भी 90 degree हो गया. Now we have two triangles, triangle ADB and triangles ADC. इन दोनों triangles को हम congruent proof करेंगे. First thing, triangle isosceles है तो AB equals to AC. Second, AD is common, and third, that these two angles are equal, that is 90 degree. So the triangle ADB and ADC will be congruent to each other, and then by CP/CT we can show that BD is equals to DC. By CP/CT we have BD equals to DC. Now in question 30 it is given that we have a triangle given. Triangle ABC is right angled triangle and P is the midpoint of the side CB. We have to show that point P is equidistant from all three vertices. ये तो हमें पता है कि CP और PB इक्वल है, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि AP भी इसी के इक्वल है. तो इसके लिए we'll do a construction. What is the construction? We'll draw a line parallel to AB which meets AC at D. क्योंकि AC को कहाँ मीट कर रहा है? D पे मीट कर रहा है और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस. अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल PDC and triangles PDA. Now in both of these triangles, first thing, angle PDC और PDA ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे 90 डिग्री. बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन फॉर अ मिड पॉइंट ऑफ from the midpoint of one side and it is parallel to the midpoint of other side, then it bisects the third side and the angle is equal to 90 degree. So the first thing is कि angle PDC equals to angle PDA. दूसरी चीज, दोनों triangles में ये side जो है PD, that is common. And third thing, D will be midpoint of AC also. AC का midpoint क्या हो जाएगा? D. क्यों? क्योंकि अभी हमने midpoint theorem बताया कि अगर हम किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, कहीं ट्रायंगल है हमारे पास, उससे हमने एक मिड पॉइंट से एक लाइन खींचा इस तरीके से कि वो किसी दूसरे साइड के पैरेलल है,
तो वो अगले साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है. सो वी हैव AD equals to DC. Now with these 3 points we can say that triangle PDC is congruent to triangle PDA SAS axiom से, और फिर हमें CPCT यानी कि corresponding part of congruent triangle से क्या मिल जाएगा, PC equals to PA. अब पहले से हमें पता था कि PC और PB बराबर हैं, और अभी हमने कैलकुलेट किया कि PC equals to PA. सो इन पॉइंट से हमें क्या मिलता है कि PA, PB और PC तीनों इक्वल, यानी कि द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज वर्टिस A, B एंड C. Now as per the question, ABCD is the circumcircle, ABCD is the circumcircle, ABCE for the triangle ABC, यानी कि ABC हमारा ट्रायंगल है और बाहर जो सर्कल हमने बनाया वो क्या है, सर्कम सर्कल है उसका. AD जो है वो इस ट्रायंगल की हाइट है और AE जो है वो सर्कल का डायमीटर है. यू हैव टू प्रूव दैट एंगल BAD एंड DAC आर, these two angles are equal. So what we are going to do, we have given in the question that AD is the height. तो अगर ये हाइट है तो ये बेस से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा. तो एंगल ADB और ADC ये एंगल्स कितने हो जाएंगे, ये एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे. तो अब हमारे पास क्या है कि सेंटर है O, वहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है कॉर्ड पे, तो हमें पता है कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा. तो नेक्स्ट थिंग वी हैव इज BD equals to DC. Now in triangle ADB and triangle ADC we have 3 points to show that these are collinear. First, AD equals to AD, that is AD is common to both of the triangles. Again अभी हमने दिखाया कि दो angles, angle ADB and angle ADC, they are equal to each other, that is 90 degree. और अगली चीज हमने दिखाई कि जो कॉर्ड के दो पार्ट्स हैं BD और DC, ये दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि OD क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसको बाइसेक्ट करेगा. तो यूजिंग these 3 points we can say that triangle ADB is congruent to triangle ADC by SAS axiom, and hence we can write that angle BAD and the angle CAD, these two angles will be equal to each other. या फिर CAD लिखिए या उसको आप CAE भी लिख सकते हैं. ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे बाय CPCT. Now as per the question we'll consider a circle with center O and diameter AB. Let us suppose that AC and AD are the chords that are inclined to AB with equal angle. यानी कि एंगल CAB बराबर है एंगल DAB के. दोनों एंगल्स क्या हैं, ये दोनों आपस में इक्वल. आपको प्रूव करना है कि AC इक्वल्स टू AD, यानी कि दो ऐसे कॉर्ड्स जो कि डायगोनल से इक्वल एंगल पे इंक्लाइंड हैं, तो आपको दिखाना है कि वो दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं. इसके लिए वी हैव टू डू अ कंस्ट्रक्शन. हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. हम यहाँ से O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे AC पे जो कि पॉइंट P पे आ रहा है, और फिर इसी तरीके से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे AD पे जो कि Q पे से मीट कर रहा है. नाउ व्हाट वी हैव, AP और PC आपस में बराबर होंगे. क्यों? क्योंकि O से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है कॉर्ड AC पे, तो हमें पता है कि वो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा. सो वी हैव AP equals to PC and similarly we have AQ equals to AD this side. Now we have two triangles, triangle AOP and triangle AOQ. इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो हम ये दिखा सकते हैं कि AP और AQ दोनों आपस में इक्वल है. तो इसके लिए सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि ये एंगल्स इक्वल है, दैट इज एंगल PAO and angle QAO are equal. Next thing what we have, AO is common and the third thing is कि ये angles 90 डिग्री है. तो इन तीन चीजों के साथ, इन तीन प्रॉपर्टीज के साथ दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. We have triangle AOP is congruent to triangle AOQ by RHS axiom. तो CPCT से AP और AQ क्या हो जाएगा, ये साइड में ये AP और ये AQ दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. अब
2 times AP will be equal to 2 times AQ. Here 2 times AP equals to 2 times AQ. तो 2 times AP को हम AP plus BC लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं. इसी तरीके से इधर हम इसको AQ plus QD लिख सकते हैं. And adding them we have AC equals to AD, which are the chords which we are talking about, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो इस तरीके से हमने दिखाया कि जो दोनों कॉर्ड्स हैं AC और AD, अगर वो डायमीटर के साथ इक्वल एंगल पे इंक्लाइंड है तो वो आपस में इक्वल होंगे. Now in question number 38 we have a cyclic quadrilateral ABCD, जहाँ पे दिया गया है कि AB is parallel to CD. Now let us do a construction. हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे डायगोनल्स को. तो अभी आपके पास क्या है कि अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो यहाँ पे BC ये एक्ट करेगा एक ट्रांसवर्सल की तरह. C ये लाइन और ये आपस में पैरेलल है तो BC एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा. तो एंगल B और एंगल C का सम, ये एंगल B और ये एंगल C दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा. दूसरी चीज, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल D और एंगल B ऑपोजिट एंगल्स हैं, उनका भी सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करें तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल D एंड द वैल्यू इज लाइक दिस, कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है. अब दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BCD, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो तीन प्रॉपर्टीज चाहिए. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि DC कॉमन है, ये जो साइड है DC वो कॉमन है. दूसरी चीज अभी हमने दिखाया कि एंगल C और एंगल D ये दोनों आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल. तीसरी चीज, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल because both of these angles are subtended by the arc DC. क्योंकि इक्वल आर्क अगर हम ले तो वो सर्कल के किसी भी सर्कमफ्रेंस की किसी भी पॉइंट पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है, तो ये एंगल आपस में इक्वल हो गए. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल्स. तो CPCT से हमें क्या मिलेगा कि AD और BC दोनों इक्वल हो गए. और दूसरी चीज हमें क्या मिलेगी कि AC और DB दोनों इक्वल. क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको बताना था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर दो साइड्स पैरेलल हैं तो बाकी के दो साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो CPCT से हमने दिखा दिया कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं. और सेकेंड पार्ट में यू हैव टू शो दैट बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल. So that is also with the help of CPCT. Now in question number 40 we have to prove that the perpendicular bisector of sides of a cyclic quadrilateral are concurrent. तो concurrent मतलब क्या होता है कि they must be intersecting at a point. एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे कि वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे या वहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होंगे. इसी तरीके से अगर कोलिनियरिटी की बात करें तो वो भी क्या होता है, किसी एक पॉइंट किसी एक स्ट्रेट लाइन पे अगर 3 पॉइंट्स हैं मान लीजिए और वो स्ट्रेट लाइन पे आते हैं तो वी से दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. नाउ इन दिस केस वी हैव अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, देन AB BC और CDD आप डायग्राम में देख सकते हैं. ये सर्कल का क्या है, कॉर्ड है. और कॉर्ड्स का जो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हर एक कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इसको बाइसेक्ट भी करे और इसके परपेंडिकुलर भी, तो हमने पढ़ा है कि वो सेंटर से होके पास होता है. तो AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो भी सेंटर से पास होगा, BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो भी सेंटर से पास होगा एंड सो ऑन. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो चारों साइड्स मिल रही हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, उसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. हेंस the right bisectors of the sides of cyclic quadrilateral ABCD will pass through the center O of the corresponding circle. तो ये जो perpendicular bisectors हैं कैसे हैं, concurrent हैं. Now in this question this is the required diagram as given. Let PQRS be cyclic quadrilateral and ABCD be the points on the exterior segment. हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है क्या कि हम DR और DQ को ज्वाइन कर देंगे. नाउ सिंस PAQD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, PAQD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एंड ऑपोजिट एंगल्स, द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री.
So angle 1 plus angle A equals to 180 degree. Similarly, since RDQB, see here, RDQB, ये भी cyclic quadrilateral है, तो angle 2 plus angle B will be 180 degree. And again we have a third quadrilateral DRCS, ये भी quadrilateral है, cyclic quadrilateral. So angle 3 plus angle C will be equal to 180 degree. These 3 points. अब हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को ऐड कर सकते हैं. तो adding them we have angle 1 plus angle 2 plus angle 3, taking them together, and then angle A plus angle B plus angle C, that will be equal to 540 degree. अब angle 1, 2 और 3 अगर हम तीनों एंगल्स को ऐड करें, we get angle D. So instead of all of these, we can write angle D, and hence we have angle A plus angle B plus angle C plus angle D equals to 540. 180 is added 3 times. That is equal to 6 right angles. 6 into 90 degree. Now this question is again like question number 35. This is a very simple question. हमें क्या करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम लेना है. तो मान लेते हैं हमारा साइक्लिक पैरेललोग्राम जो है वो है ABCD. अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम में सबसे पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि ये एंगल D है और ये एंगल B है, ऑपोजिट एंगल्स है, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री. इसी तरीके से एंगल A और एंगल C का सम भी कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. दूसरी चीज़, क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है तो हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, यानी कि एंगल A और एंगल C बराबर होगा. अब हमारे पास दो बातें हैं. पहली चीज़ कि दोनों एंगल बराबर हैं, और दूसरा कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री है. तो दोनों का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री. तभी दोनों बराबर भी होंगे और इक्वल भी होंगे. सो वी हैव एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री. सिमिलरली हम दिखा सकते हैं कि एंगल D और एंगल B भी कितने हैं 90 डिग्री हैं. अब ये जो डायग्राम है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये क्या था पैरेललोग्राम था जिसका कि हर एंगल 90 डिग्री के बराबर है. Thus all the angles of the cyclic quadrilateral, that is parallelogram, is 90 degree and hence it is a rectangle. So like this we have to prove this question.